Good morning, everyone. So we have completed our chapter 5, arithmetic progression, and today we are going to do some practice questions of this exercise of this chapter. I have some questions mentioned on the board. I have written. At present, we will do those questions, and then we will continue with the other questions. And worksheet also will be sent to you today. You have to solve the worksheet. So your first question is: find S27 if you are given A1 plus A17, A23, A27 is 228. You have to do this question. Means you are given 228 is what? ये आपका इन सबका sum given है. We have to find out S27. Sum of 27 terms का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? What will be the formula? S27 is equal to n upon 2 into A1 plus A27. ठीक है, यही आएगा आपका A1 plus A27. इसको करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई. 27 upon 2 वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. 2A plus n minus 1 into D. 2A plus 27 minus 1 26 and 2 को आप निकाल दो बार कॉमन. 2A plus 13D कैंसिल हुआ और आपके पास S27 की वैल्यू आ गई 27 मल्टीप्लाई A प्लस 13D. ठीक है, इसकी मुझे अभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आई एम गिवन दिस. सो इससे अब मुझे हेल्प लेनी है. आई हैव टू रीच ऑन दिस. ठीक है, मुझे जल्दी से कर सकते हो तो कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बताओ. एंड दोज हु कैन टेल हाउ टू डू प्लीज रेज द हैंड. How you are solving the question? What can be done in the question to solve this? Which formula कौन से? A5 का लगा दो. A11 की वैल्यू पुट करो. A17, A plus 16D, A plus 22D, A plus 26D. Hurry up, calculate it and let me know what the value you are getting from here. जिसको नहीं समझ में आया प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. इफ यू आर डूइंग देन इट्स ओके. If you want to explain me, then please let me know. Otherwise, I am waiting for your replies. Beta, फिर if somebody is not able to hear, then maybe there is some network problem with you. Okay. Okay, please explain. I hope this. हमें इसमें फाइंड आउट करना है S37. Let me erase this also so that I can utilize the space. 513 no. नहीं, कुछ छोड़ दिया आपने बेटा. Somewhere 2 is left. Saksham, 2 आपका कहीं मिसिंग हो गया है. Multiply 2 it must be. Okay. S27 आपने फाइंड आउट करना है एंड वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला 27 अपॉन 2 2A plus n minus 1 means 27 minus 1 multiply D. This is equal to 27 upon 2. आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से 2 निकाल दिया बाहर because this will be 27 minus 1 26. तो यहाँ से भी आपका 2 निकल सकता है, यहाँ से भी 2 निकल सकता है. So you are going to cancel it and we will write A plus 26 में से 2 is out. So what is left? 13 D, right? So आपके पास ये वैल्यू आ गई 27 into A plus 13 D. Clear? अब मुझे अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए मैं उसको 27 से मल्टीप्लाई करके I will get S27. But I am given this. So I am going to put the values here. A1 is A. A5 is A plus 4D. A11 is A plus 10D.
plus A17 is A plus 16D, and A22 is A plus 22D is A23, and this will be A plus 26D. This is 2 to 8, right? Now count A. How many A's are here? 2, 3, 4, 5 and 6. So you have 6A plus D count कर लो, आपके पास कितने हो गए? 4 plus 10, 14. 14 plus 16 is 30. 52. 52 plus 26, 78. 78D is equal to 228. ठीक है, इसमें से आप कॉमन निकाल दो 6 and you will be left with A plus 13D, that is 228. So you are getting the value of A plus 13D is equal to 228 upon 6. इसकी वैल्यू आ गई. Now you are going to put this value A plus 13D over here. ठीक है, यहां से अब फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आएगा. हाँ जी जन्नत बोलो. प्लस 13D की वैल्यू 38 आई है. कितनी आई है? 38. हाँ कैंसिल करो. A बिल्कुल. हाँ जी 38 आएगी. और 38 वैल्यू को आप 38 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यू विल गेट योर आंसर टू बी 126, राइट? सो दिस वे वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 27 टर्म्स, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. Yes. Okay, come to the next question then. Your second question is sum of first 20 terms is 1/3 of the sum of next 20 terms. First term is given to you 1 and we have to find out the sum of 30 terms. Sum of first 20 terms is 1/3 of the sum of next 20 terms, and first term is given to us and we have to find out the value of S30, sum of first 30 terms. जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा ऐसे बनेगा कि S20 is equal to 1/3 S40. बिल्कुल. No, sum of next 20 है बेटा. next 20 का मतलब next 20 का सम कहाँ से आएगा? ऐड नहीं करेंगे 20 प्लस. No, आपके पास आ जाएगा sum of 20 terms is 1/3 the sum of next 20 terms. और next 20 terms हमें कहाँ से मिलेंगी? अगर हम 40 terms के sum में से 20 terms का sum माइनस करेंगे. ठीक है. ठीक है. So इसको अब आप इसमें values put करो और इसको simplify करो. आपके पास A की भी value given है, only D is left, बाकी तो सारी values हैं, N भी है, सब कुछ है. So you just have to find out D. A और D मिल गए आपके पास. You can find out S30. I hope all are doing. If you want me to do side by side, please let me know. Ma'am, please explain again. पिछला question रह गया. चलो दोबारा कर लेते हैं बेटा. एक बारी पहले ये कर लो, and then we will do that question again. पिछले वाला भी दोबारा कर लेते हैं. I have got the answer that D is 2. Let me check. What about others? Yes, right. बिल्कुल ठीक है. भाविका पार्थ, D is 2. And you are giving the answer as 30 also. Yes, correct answer. Bhavika also. Your answers are correct. How can we find D बेटा? इसमें आप S20 का फॉर्मूला लगाओ. 20/2 2A. A आपके पास given है 1. So मैं 2 multiply 1 कर रही हूँ. Plus 20 minus 1. N minus 1 होता है 19 into D. ठीक है, ये आपने लगा दिया. This is equal to 1/3 of again आपका S40 लगाना पड़ेगा.
तो यहाँ पर हो जाएगा 40/2 2a अगेन 2 प्लस 40 माइनस 1 इज 39d माइनस फिर से S20 का फॉर्मूला लगा देते हैं 20/2 2a प्लस 19d। इसको आप सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, यहां से d की वैल्यू आएगी। हाँ 1 2 प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ जी प्रीवियस क्वेश्चन का आपका जो आंसर था वो 1026 था। यस 1026 बाय मे बी बाय मिस्टेक आई स्पोक 126 बट दैट विल बी 1026। 27 को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। यस do I have to do the question? We have to find out the value of d from here and after getting d we will find out S30। हो गया सबका? I think I will have to do because you are not telling। 10 को मल्टीप्लाई कर लो 20 plus 190d is equal to 1/3 and this will be 20 to the 40 plus 780d minus 10 to the 20 minus 190d। ठीक है, इसको सारा मल्टीप्लाई किया है and then we are going to simplify it। 20 plus 190d is equal to 1/3 and 40 minus 20 is 20 plus 780 minus 190 is 590। इस 3 को आप इधर शिफ्ट कर दो, you will get 60 plus 570d is equal to 20 plus this is d also 590d। I will have to erase 60 minus 20 will be okay 60 minus 20 will be 40। आपने 20 को इधर शिफ्ट किया 570 को उधर शिफ्ट किया 590 minus 60 is 20d so d you are going to get 40/20 that is 2। आपकी d की वैल्यू 2 आई है। then you have to find out the value of S30। S30 के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए S30 is equal to 30/2 into 2a। a was 1 plus n minus 1 means 29 और d आपका आ गया है 2 राइट। सो 2 को आप बाहर चलो कैंसिल ही कर दो and then you are going to get 15 multiply 2 plus 58 58 plus 2 is 60 900। ठीक है, so sum of first 30 terms is 900। clear? Shall we come to the next question? Or I think you are busy in doing the next question। Questions का level जैसे जैसे आप नीचे आएंगे I have written the simpler questions at the end। I started with the high level and the next question is 1 plus 6 plus 11 plus 16 dash 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 last term is x and their sum is 148। we have to find out the value of x। बता दीजिए जल्दी से how we are going to do this question। who is telling? Answer you are giving x is 36। okay बिल्कुल ठीक आंसर है। Ansh is also telling that your D in this question is 5। हाँ जी बिल्कुल। SN का फॉर्मूला बेटा सम ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 148। SN is 148। we have to find out the value of x। okay n by 2 into a plus
an is equal to 148. So you will get n upon 2 into a plus first term is 1 and the last term is x is equal to 148. यहाँ से तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, सो हम इसको ये नहीं पुट करेंगे, x फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ना लेके आपको दूसरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 148, क्योंकि उस इक्वेशन में मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए थे, आई वाज नॉट हैविंग n एंड आई वाज नॉट हैविंग x, सो यहाँ पर मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा एंड नाउ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n minus 1 and d is 6 minus 1 5, this is equal to 148, right? And now 2 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, you will get n and inside the bracket 2 plus 5n minus 5 is equal to 148 multiply 2. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर्स आ रहे हैं आपके. So this will be 5n minus 3 multiply n is equal to 296, right? And then आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी. If you multiply this n, you will get 5n square minus 3n minus 296 is equal to 0. ठीक है, आपको करने हैं इसके पेयर्स फाइंड आउट और यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, व्हाट द पेयर्स यू हैव टेकन, पेयर्स क्या क्या हैं आपके? Yes, 40 and 37. I think these are the pairs. So you will get 5n square minus 40n plus 37n, because minus 40 plus 37 is minus 3, minus 296, this is equal to 0. And now you will have to take 5 common, n and n minus 8 plus यहाँ से भी आपका 37 आ जाएगा and you will get n minus 8, this is equal to 0. नहीं, has I done some mistake in my question? No, ठीक है. 5n plus 37 and this is n minus 8, this is equal to 0. So from here you will get either n is equal to minus 37 upon 5 or n is equal to 8. This value will be rejected and this value will be selected. So you will get n is equal to 8, and if you are getting n is equal to 8, you have to find out, क्या find out करना है आपने? x. ठीक है, that means n terms, 8 terms का sum 148 है, we have to find out the 8th term. तो 8th term आप find out कर लीजिए, x is equal to, it will be a plus 70, राइट? a की वैल्यू आपके पास 1 है प्लस 7 मल्टीप्लाई d आपने कैलकुलेट, हाँ d इज 5, तो ये हो गई आपके पास 7 5 35 प्लस 1 36, राइट? सो द वैल्यू ऑफ x इज 36. बड़ी टर्म्स के पेयर्स कैसे निकालते हैं बेटा, बताती हूँ. देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था ना, I hope the question is clear to everyone. आपका ये जो क्वेश्चन था 5 और 196, एक इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको आप ब्रेक करके ही लिख दोगे. ठीक है, 296 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 को 148 से, तो मेरा 296 आया था. फिर से आपने इस 148 को फर्दर ब्रेक कर लिया, ये 4 की टेबल में आ रहा है, 4 से हमने 148 को डिवाइड किया, तो 4 की टेबल में ये कहाँ आ रहा है? इस पे आ रहा है. ठीक है, ये जो हमारे पेयर्स होते हैं ना, इसी को हम रीअरेंज करके देखते जाते हैं कि हमारे पास उनका सम या डिफरेंस मिडल टर्म आ जाए. तो यहाँ पर मैंने इन सबको इकट्ठे ले लिया और ये अकेला हो गया. 5 2 10 इंटू 4 40 और 40 और 37 का मेरे पास डिफरेंस 3 आ गया. और अगर आपको वहां पर 3 की जगह कुछ और गिवन होता, फिर आप अपने पेयर्स को चेंज कर सकते थे. आप इनको ले लेते, इसको ले लेते. 4 को अगर आपको फिर ब्रेक करना पड़ता, आप 4 को फिर से ब्रेक कर लेते. तो जस्ट आपको पेयरिंग अप्लाई करनी पड़ेगी.
नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आपको पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपके बहुत ज्यादा बड़ी टर्म है एंड यू थिंक यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, यू प्लीज गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसमें आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं, सोचना नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the sum of first n positive integers. This is n. फटाफट से we have to find out Sn. No, Bhavika, you are telling me the answer of this question. One question is still there in between. थोड़ा सा मिसिंग रह गया रौनक, कुछ मिसिंग रह गया आपके में। Okay, we have to find out the sum of n positive integers. N positive integers are the positive integers are 1 2 3 4 up to we have to take n, and then we have to find out their sum Sn. Sn is equal to n upon 2, 2a, 2 multiply 1 plus n minus 1, and d is their difference, that is 1. So ये आपके पास n by 2, 2 plus n minus 1, right? And then this is n by 2 और ये रह गया आपका n plus 1 because 2 minus 1 is 1. तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है this is n into n plus 1 by 2. इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना, जो एनटीएससी वाले हैं उनके लिए तो स्पेशल है ये फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको टर्म्स गिवन हैं कि फर्स्ट 100 का फाइंड आउट करो, तो वहां पे एसएन का इतना लंबा फॉर्मूला मत लगाना, सीधा ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, और अगर आपके पास जो नंबर्स हैं, फॉर्मूला अगर आपने नोट करके रखना है रख लीजिए फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर आपके पास ये है एन टर्म्स के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला, सो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला है, कितने भी नंबर्स हो उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ऐसे ही एक क्यूब का और आता है, ये 3 फॉर्मूले मेन होते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और आपने ले लिया इसको n क्यूब तक, और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूला as per demand of the question, right? So now the next question is, we have to find out Sn is given to you 3n square minus 4n. This is similar to the question of your exercise, 3n square minus 4n, and we have to find out the value of an. an के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएं? Anybody please tell. Instead of writing, please let me know. भाविका बोलोगे आप? Please raise your hand. Hurry up. हाँ जी, भाविका करो explain how we have how you have taken out the value of an, how you have done the question. हम पहले Sn की वैल्यू पुट करके उसमें ना Sn माइनस 1 की वैल्यू को माइनस करा है। पहले दोबारा से बोलो, सॉरी आई एम नॉट एबल टू हियर। Sn माइनस फिर Sn माइनस 1। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स में से n माइनस 1 टर्म्स का सम अगर आप माइनस कर देते हैं, यू विल गेट द nth टर्म। व्हेन वी डिड दिस फॉर्मूला इट वाज एक्सप्लेन्ड टू यू कि अगर आप n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं, देन यू विल गेट द nth टर्म। सो Sn फाइंड आउट करने के लिए यू विल पुट n इज इक्वल टू n, एंड टू फाइंड आउट Sn माइनस 1 you will put n as n minus 1 in the formula of Sn. तो Sn तो आपका यही हो गया 3n square minus 4n minus Sn minus 1 means 3
मल्टीप्लाई n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई n माइनस 1, ओपन करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लिख देंगे, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n एंड माइनस 4n प्लस 4, राइट। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3, इसको पहले अंदर ही करके चलो कर लो, 3 माइनस माइनस प्लस 3 to 6n एंड नाउ दिस माइनस माइनस प्लस 4n माइनस प्लस माइनस 4। अब आपको करना है टर्म्स को सिंप्लीफाई, 3n स्क्वायर से आपका 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड माइनस 4n एंड प्लस 4n दे आर कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद 6n माइनस 7, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा दोबारा से सुनो, आपके पास ये एस एन का फॉर्मूला गिवन है 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है। उसके बाद आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए ये देखो मेरे पास AP है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है nth टर्म। इसकी 4th टर्म को क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि इन चारों का सम में से मैंने ये 3 का सम माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 में से आपने इनको माइनस कर दिया, ठीक है। कितना आया था 9, 16 माइनस 9 आपका 7 आ गया, क्योंकि 1 3 5 इनका सम आया 9, 9 में आपने 7 प्लस किया तभी आपका 16 इनका सम आया। इसका मतलब आपने 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस किया तो आपके पास 4th टर्म आई, राइट। 4th टर्म लाने के लिए 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस, nth टर्म लाने के लिए n टर्म्स के सम में से उससे पहले वाली जितनी भी टर्म है उससे पहले आपकी n माइनस 1 टर्म्स होंगी, सो n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम आप सबट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द nth टर्म। उसके बाद जस्ट आपने फॉर्मूला पुट किया है, Sn आपके पास 3n स्क्वायर माइनस 4n था, इसको एज इट इज लिख दिया, देन माइनस Sn माइनस 1 आपने करना है, दैट मीन्स आपके S वाले फॉर्मूला में n की जगह पे n माइनस 1 लेना है। सो मैंने यहाँ पर जहां भी n था आई हैव टेकन n माइनस 1, 3 into n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एट द प्लेस ऑफ n माइनस 1, आइडेंटिटी अप्लाई की है, ब्रैकेट ओपन की है, जो कैंसिल होता था वो कैंसिल किया है एंड देन व्हाट इज लेफ्ट 6n माइनस 7, क्लियर। चलिए I think now it is clear to you. Time is going to get almost over, so एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, then we will do the questions later outside the class. Your question now is, in an AP sum of first 10 terms is minus 150 and sum of next 10 terms is minus 550. Sum of 10 terms is minus 150 and sum of next 10 terms is minus 550 and you have to find out the AP. How we will do? जल्दी से एक्सप्लेन कर दो so that others can do. Enter. हरी अप, एक्सप्लेन कौन करने वाला है? हर्षित आज कुछ नहीं बोलेगा? अंश, क्रेश, जल्दी से बता दो, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो कर दिया। सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है माइनस 150, फॉर्मूला लगाओ, एक इक्वेशन आएगी। सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कहां से लाएं भाई? याद रखना सम ऑफ 10 टर्म्स हमें गिवन है, नेक्स्ट 10 टर्म्स का हमें 550 गिवन है और नेक्स्ट 10 टर्म्स हमारी कहां से आएंगी? जब आप 20 टर्म्स में से 10 टर्म्स माइनस कर देंगे देन यू विल गेट द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स
दिस इज गिवन टू यू -550 और 7 सम ऑफ 10 टर्म्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है दैट दिस इज -150. So S20 minus 150 is equal to -550. ये माइनस माइनस आपके हो गए प्लस और उधर जाके फिर से हो जाएगा माइनस. So sum of 20 terms is -550 minus 150. So it will be 700 with minus sign. ठीक है, 20 टर्म्स का सम -700 है, 10 टर्म्स का सम -150 है. एक इक्वेशन आपने यहां से बनानी है, एक इक्वेशन आपने यहां से बनानी है. You will get two equations and then you have to simplify those two equations and find out the value of A and D. Right? A और D की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो आप ऑटोमेटिकली इसकी AP भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, I hope you all will do this question. And I am sending you the worksheet today और मुझे प्लीज उसके solutions करके भेजना. ठीक है, I want all of you to please send me your solutions. और कब तक भेजेंगे? चलिए आप मुझे कल तक भेज दीजिए. ठीक है, आज का पूरा दिन आप ले लीजिए, मुझे कल शाम तक भेज दो the solution of my complete worksheet.